What is the cost to go from 1 to 1? That is infinity. 2 to 2, infinity. 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5. That means there is no edge from 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3. Okay. 1 to 2, what is the cost? 20. So all these things are given to you. So हो सकता है एग्जाम में आपको ग्राफ दिया होगा. 1 to 3, it is 30. Okay. This is your directed graph because इसमें 2 to 1 और 3 to 1 cost different है. ऐसे ही आपके पास 1 to 4 है, that is your 10, and 1 to 5 is your 11. So this way you will complete your graph. Okay, suppose that graph is given to you. Actually from that graph, first you will create this cost adjacency matrix. Okay, so I'm assuming that this graph, from this graph you have created this one. 1 to 1 की cost आपने infinity ले लेनी है. Infinity means very large value. 2 to 2 is infinity, 3 to 3, 4 to 4 and 5 to 5. थोड़ा ऊपर नीचे है, but I think this is cleared. जैसे 2 से 1 का डिस्टेंस 1 से 2 का 20 है और 2 से 1 का डिफरेंट है. 2 से 1 का suppose it is 15. Okay, similarly 3 to 1 is your 3. 3 to 1 is your 3. So this way you have to create a matrix from this graph. Okay, this is 3, 5, infinity, 2, 4, 19, 6, 18, infinity, 3, like this way. Okay, so I'm assuming that from the graph you are creating this cost adjacency matrix. Okay, now the algorithm for this is given over here, but I will go through this, all these things after going through this numerical. Okay, so first of all, you need to find out, suppose you are taking that traveling salesman, that person is starting from one node. From that one node, that person has to go to other nodes. What are the other nodes? 2, 3, 4 and 5. After going through 2, 3, 4, 5 once, it can be anything. From 1, that person can go to 3, then from 3 to 2, 2 to 5, 5 to 4, and from 4, he has to come back to 1. Okay, but the total cost, that should be the minimum one, because this is your minimization problem. So what is the source node that I'm taking over here? That is your 1. So first of all, first here step is that we need to find out the reduced cost matrix. Now what's the meaning of this reduced cost matrix? हमें रो वाइज हमने एक एक रो को लेना है और हर एक रो में हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी है. बिकॉज if person is starting from 1, उसने कौन सी नोड पे जाना है? Suppose this is your second node, this is third, this is fourth, this is, okay, sorry, this is your 1, this is 2, 3, 4 and 5. ओके, 1 से उसने कौन सी नोड पे जाना है जिसका डिस्टेंस मिनिमम हो? तो यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है? 10. तो 10 पे जाना है. ओके, तो हमने क्या करना है, हर एक रो में से जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेनी है और उस मिनिमम वैल्यू को बाकी सब वैल्यू से हमने माइनस कर देना है. Okay, like over here in the first row, what is the minimum value? In the first row, minimum value is 10. So that 10 value we will subtract from each value of that row only. Okay, here I'm taking that infinity minus 10, you can say is infinity, because infinity is a very large value. So I'm assuming that from that large value, if you are subtracting some very small value like 10, then won't make a difference, so it will remain your 10. Fine. Next, 20 minus 10 will become what? 20 minus 10 will become your 10. So 20 minus 10 is 10. So here you are getting 10. Then 30 minus 10, 20. 10 minus 10. So here you are getting 0. 11 minus 10, 1. Is it okay? So what I have done, I have subtracted the minimum value of first row from each value. Okay, minimum value इसकी 10 थी तो उसको हमने सब में से subtract कर दिया. तो here I'm writing the first value is your 10 इस रो में. Okay, second row में सबसे minimum value क्या है? Minimum value है 2. तो ये 2 वैल्यू को हम हर एक इसकी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इट विल बी 15 minus 2 is 13, then infinity, then is 14, then is 2, then 2 minus 2 is 0. So you are getting this one. Next, you take third row. Third row में minimum value क्या है? That is your 2, again 2. So that 2 you will subtract from each value. So you are getting 1, 3, infinity. Okay.
here it is 2, and here it should be 4 minus 2. Here it should be actually 2, not 0 in the third row. This is 3 minus 2, 1, 5 minus 3, 2 is 3. Here infinity, 2 minus 2 is 0. Otherwise, you can assume that here 2 is given to you. So if it is 2, 2 minus 2 will become 0. Next, fourth row. What is the minimum value? 3. So 3 value को सबसे subtract करेंगे तो it will become 16, 3, 18 minus 3 is 15, infinity 0. Okay. Next, last row. Last row में सबसे minimum value क्या है? Last row, what is the minimum value? Minimum value is your 4. तो 4 को subtract करेंगे, it will become 12, 0, 3 and 12. 12, 0, 3 and 12 and then infinity. Okay, so this is your row-wise reduced cost matrix. हमने क्या किया? We are taking each row one by one and taking the minimum value of each row. और उस minimum value को हमने हर एक उसकी value से हर एक row की subtract कर दिया. हमने क्या क्या subtract किया अभी? Here it was 10, here it was 2, 2 subtract किया यहाँ पर, then 3 and then 4. You take the summation of all these. तो row wise हमने कितनी reduction की उसका sum है. Row wise reduction sum is 10 plus 2 plus 2 plus 3 plus 4, that is your 21. Okay. Why do you need this? That would be cleared once I will do this step. Next, what we will do, we will take the column wise reduction. We will find out the column wise reduction matrix. Okay. किस पे अप्लाई करना है? इस मैट्रिक्स पे, नॉट ऑन द ओरिजिनल मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में हमने हर एक कॉलम को लेना है और हर एक कॉलम में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. Okay, what is the minimum value of the first column? 1. Subtract that, so it will become infinity 12, 0, 15, 11. So infinity 12, 0, 15, 11. Next में minimum 0 है, so there is no need to do that thing. No reduction is possible. Here minimum value is 3. So 3 को subtract करो, it will become 20 minus 3, 17, then 11, then infinity, then 12, then 0. Here also minimum value is 0. Here also minimum value is 0. So no reduction is possible. Okay. तो हमने कितनी reduction apply की? First column में minimum value थी आपकी 1 और यहाँ पर minimum value थी आपकी 3. तो total column wise reduction कितनी हो गई? 1 plus 3, that is 4. So you can write on 4. Row wise reduction थी 21, column wise है आपकी 4. So total reduction is then your 21 plus 4, that is your 25. Okay, हमने find out करना है कि total reduction कितनी है. Okay, because I had told you that in case of branch and bound, first of all you need to make a tree. So ये जो आप root node लेते हो, इस root node का हमने upper bound find out करना था और lower bound. In order to find out the upper and the lower bound, we are doing all these things. तो जब आपके पास cumulative total reduced sum आ गया है 25, so this is actually your lower bound. You will set this as the lower bound of your root node. So lower bound is your 25, and what is the upper bound? Upper bound is your infinity of this root node. ये root node का upper bound आ गया infinity और lower bound आ गया 25. Okay? यहाँ तक कोई डाउट? बाद में क्लियर हो जाएगा कि why we are finding the row wise reduction and column wise reduction. What is the meaning of that? That would be cleared here only. Yes, beta. Any doubt? Okay, so next step is now important. Okay, here what we have to do, this one. So what I had told you that a person is starting from the one node. So that one node, I'm assuming this is my root node. यहाँ से उसने start करना है और upper bound जो maximum इसकी cost है वो infinity. Infinity means like this is minimization problem. So I'm assuming कि right now the upper bound is infinity और lower bound कितना आ गया हमारा 25. Okay. Now what are the other nodes in that graph? Other nodes were 2, 3, 4 and 5. That means from one node
from this first node, that person can go to this second node. This is your node. Okay, tree में ये जो 2 है, that is not your node number of graph. I is equal to 2 means the person can go to second node, person can go to third node, fourth node और fifth node. तो ये 4 ऑप्शंस पॉसिबल हैं. अगर ये 4 ऑप्शंस हैं तो आपके पास 4 नोड्स मींस इसके 4 चिल्ड्रन होंगे. That means if the person is going to second node, then we are coming to this one. Person third node पे जाएगा तो हम यहाँ आ रहे हैं, fourth पे यहाँ और fifth पे यहाँ पर. Okay. But now we don't know that if we are going to यहाँ से 1 से person ने 2 node पे जाना है, 3 पे, 4 पे के 5 पे. ओके, ये कैसे पता चलेगा? हमने क्या करना है, हर एक नोड का अभी अपर और लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है, और जिसका सबसे कम होगा लोअर बाउंड वो हमने नोट लेनी है, जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी वो हमने नोट पर जाना है. दैट मीन्स कि अभी हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, दिस वन, ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है. ठीक है, अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है कि पर्सन सेकेंड नोड पर जाएगा, थर्ड पर, फोर्थ पर के फिफ्थ पर. ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दैट अ पर्सन इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2. दैट मींस कंसीडर द पाथ 1 to 2. फाइन. अगर आप पर्सन ने 1 से 2 पर अगर जाना है तो यू आर एज्यूमिंग the traveling person is going from 1 to 2. In between there can be many nodes. I'm not considering that. I'm assuming कि मैं 1 से 2 जा रही हूँ. That means 2 से उसे back 1 पर भी आना है, तो ये एक साइकिल बनेगा. ओके, तो हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है आपका, जो आपने प्रीवियस मैट्रिक्स था 1 लेवल पे मैट्रिक्स था दिस वन. अगर यहाँ से पर्सन हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 से 2 नोड पर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो 1 रो है वो भी सारी वैल्यूज हम इन्फिनिटी सेट कर देंगे. इन्फिनिटी मींस क्या, कि पर्सन ने ऑलरेडी 1 नोड को ट्रेवल कर लिया हुआ है, और 2 का कॉलम हम इन्फिनिटी पे सेट कर देंगे. इसकी सारी वैल्यूज को हम इन्फिनिटी कर देंगे. क्यों इन्फिनिटी? बिकॉज हम एज्यूम कर रहे हैं कि पर्सन इज मूविंग फ्रॉम 1 to 2, तो दैट मीन्स 2 भी ट्रैवर्स हो गया, विजिट हो गया, तो 2 की सारी एंट्रीज भी हमारी इन्फिनिटी हो जाएंगे. 1 से 2 जा रहा है पर्सन, तो अगर 2 उसकी लास्ट नोड है तो 2 से उसे बैक 1 पर भी आना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, ये जो A21 एंट्री है, A21 एंट्री कौन सी है, 12, इसको भी हम infinity set कर देंगे. Okay, so this like new method is there. Like what we are doing, if the person is going from 1 to 2, you need to remember हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इन्फिनिटी सेट कर देना है, और आपने ज्यूम करना है वो 2 से वापस 1 भी आएगा, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ साइकिल, एक साइकिल फाइंड आउट करना था. तो ये जो A21 एंट्री है उसको भी हम इन्फिनिटी कर रहे हैं. इन्फिनिटी मींस वी आर अज्यूमिंग नाउ those distances are very large, that means they are already covered. तो ये देखो, आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इन्फिनिटी कर दिया, और ये जो A21 है उसको भी इन्फिनिटी कर दिया. Any doubt in this? Yes बेटा, any doubt? This is okay? हाँ, ये पता चला हम क्यों कर रहे हैं इन्फिनिटी. ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, इस नोड को अगर मैं सेकंड नोड पर जा रही हूँ तो मुझे इसका अपर और लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है. अगेन इसका अपर और लोअर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए आपको इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, जैसे आपने प्रीवियसली किया. तो रिड्यूस करने का क्या मेथड है, पहले हम रो वाइज रिडक्शन अप्लाई करेंगे. सो रो वाइज रिडक्शन के लिए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो, अगर तो इन्फिनिटी है देयर इज नो नीड टू टेक दैट. ओके, हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी है. वी वोंट अप्लाई एनी रिडक्शन ओवर हियर. Here it is written, apply row and column reduction to only those rows and columns where each column and row are not completely infinity. अगर कोई total infinity है तो वहाँ reduction apply नहीं करनी. तो यहाँ हम कोई reduction apply नहीं करेंगे इस row में. इसमें minimum value कितनी है, 0, तो यहाँ होगी reduction 0. यहाँ पर 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है एक्चुअली, तो यहाँ पर भी. तो टोटल रो वाइज रिडक्शन कितनी हो गई आपकी, 0. अभी कॉलम वाइज यहाँ पर 0, यहाँ हमने नहीं अप्लाई करनी रिडक्शन.
here it is 0 0 and here also 0. तो एक्चुअली कॉलम वाइज रिडक्शन भी यहाँ पर कितनी है, 0 है. तो कम्युलेटिव रिडक्शन कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई. फाइन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अगेन वेरी डिफरेंट वन. अब हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि सेकंड की कॉस्ट कितनी है. कॉस्ट नॉट अपर एंड लोअर बाउंड. अपर एंड लोअर बाउंड हम जस्ट लाइक अपर बाउंड नहीं फाइंड आउट करेंगे, जस्ट लोअर बाउंड यू कैन से. लोअर बाउंड मींस कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द नोड 2. वो कॉस्ट क्या होगी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑफ प्रीवियस मैट्रिक्स. हम कहां से चले थे इसमें, वन नोड से. तो वन नोड की इस नोड की कॉस्ट कितनी है, एल लोअर बाउंड दैट इज योर 25. तो आई एम टेकिंग 25. फिर आप 1 से 2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे. स्टार्टिंग में जो आपने स्टार्ट किया था, तो 1 से, या आप ग्राफ चेक कर लो, 1 से 2 का डिस्टेंस कितना है, 1 से 2 दैट इज योर 20. ओके, दैट इज योर 20. सो हियर प्रीवियस मैट्रिक्स जो था आपकी वन नोड, उसका कॉस्ट यू आर राइटिंग. देन द कॉस्ट ऑफ द एज ए 1 to 2 10 plus what is the cost of the second node. Again I'm writing over here. मैंने क्या क्या लिखा है, वन नोड से आप 2 नोड पे सपोज आ गए. तो वन नोड की जो कॉस्ट है वो कितनी थी आपकी, लोअर बाउंड मीन्स 25 है. इसकी जो कॉस्ट फाइंड आउट की वो कितनी है, 0. और 1 से 2 नोड का डिस्टेंस कितना है आपका, 10. इट इज 10 गिवन. ठीक है, आप देख लेना स्टार्टिंग में 10 होगा. 1 से 2 का डिस्टेंस है 10. तो इट विल बी 25 प्लस 10 प्लस 0. सो कॉस्ट आ गई आपकी सेकेंड नोड की 35. ओके, दिस इज ओके. हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट of this path 1 to 2 path when you are going to second node. जब आप second node पे जा रहे हो, I है 2. Is it clear beta? Yes beta. Yes. Okay. ओके, सिमिलरली आप ऑप्शन क्या मैंने आपको दी थी, 1 से 2. यहाँ पर 1 से आप 2 नोड पे जा सकते हो, फिर 1 से 3. अभी हमने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट की, अभी आप 3 नोड की कॉस्ट फाइंड आउट करोगे. आप 3 नोड की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, अगेन सेम मेथड. आप क्या करोगे, 1 फर्स्ट रो. आपने मैट्रिक्स अब कौन सा लेना है, मैट्रिक्स लेना है जो 1 नोड के साथ कनेक्टेड था. स्टूडेंट्स इसी में मिस्टेक करते हैं, ये वाला मैट्रिक्स जिसकी हमने कम्युलेटिव रिडक्शन सम कितना निकाला था, 25. ओके, इसमें हमने फर्स्ट रो और 3 तक जाना है, मतलब थर्ड कॉलम को इन्फिनिटी सेट कर देंगे और A31 को हम इन्फिनिटी सेट करेंगे, A31 को इन्फिनिटी. ओके, सो आई एम गोइंग देयर. In order to find out the path 1 to 3, we are changing all the entries of row 1 and column 3 of A to infinity. तो आप यहाँ चेक करो, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम इन्फिनिटी हो गया, एंड दिस एंट्री A31 मींस दिस एंट्री सेट टू इन्फिनिटी. तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया. अब इस मैट्रिक्स में अगेन यू विल अप्लाई द रो वाइज एंड द कॉलम वाइज रिडक्शन. ओके, आपने रो वाइज रिडक्शन अप्लाई करने का फिर सेम मेथड है. जो इन्फिनिटी है रो और कॉलम उनको कंसीडर नहीं करना, बाकी सबको करना है. इस रो, इसमें मिनिमम कितनी है, 0. इसमें मिनिमम भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0. तो एक्चुअली नो रो वाइज रिडक्शन इज देयर. टोटल रो वाइज रिडक्शन इज योर 0. अब कॉलम वाइज इसमें मिनिमम कितना है, 11. दैट मीन्स आप इसमें से 11 माइनस करोगे. 11 माइनस 12 विल बिकम 1. सो दिस इज योर 1. 15 माइनस 11 इज 4. यहाँ 0. यहाँ कॉलम में 0 है मिनिमम, ये हमने नहीं लेना. इसमें भी 0, इसमें भी 0. तो टोटल कॉलम वाइज रिडक्शन कितनी हो गई, 11. तो टोटल कॉम्युलेटिव रिडक्शन हो गई है आपकी अब 11. ओके, 1 से आपने कहाँ जाना था,
3 पे। अब 3 की कॉस्ट कितनी होगी? 3 की कॉस्ट होगी, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ वन नोड? 25 प्लस हमने कितनी रिडक्शन, कॉम्युलेटिव रिडक्शन अप्लाई की है, दैट इज योर 11 एंड द कॉस्ट टू गो फ्रॉम 1 to 3. Okay, the cost to go from 1 to 3 is, let's check that is your 17. That means 25 plus 17 plus 11, तो ये आपकी आ गई 53. Okay, so you will write down the cost to go to 3 is your 53. Similarly, आपने क्या अप्लाई कर देना है, 1 से 4 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इट्स वेरी लेंथी. 1 से 5 का आपका आया है, 1 से 4 का आया है 25. सिमिलरली आपने 1 से 5 का फाइंड आउट करना है, तो 1 से 5 का आया 31. तो यू विल राइट डाउन ऑल दीज कॉस्ट. 2 का आया था 35, ये 53, ये 25 और ये क्या है आपका 31. अब इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है? दैट इज योर 25. ओके, दैट मीन दिस विल बिकम योर डेड नोट. हम 1 से ना तो 2 जाएंगे, ना 1 से 3 जाना है, ना ही 1 से 5 जाना है. हम कहाँ जा रहे हैं? 1 से 4, क्योंकि उसका डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 25. ओके, इज इट क्लियर? ओके, एनी डाउट सो फार? यस बेटा. So from 1, the person is going to 4. So that is already decided. ओके, अब हर एक नोड को हमने ओनली वंस ट्राई करना है. तो 4 के बाद कौन कौन सी ऑप्शन है? इसका मतलब अगर हम 4th नोड लेंगे तो यहां से हम कौन कौन सी नोड पे जा सकते हैं? यू कैन गो टू 2nd नोड, ये ऑप्शन है. एक ऑप्शन है आप 3rd पे चले जाओ, और एक ऑप्शन है आप 5 नोड पे चले जाओ. Okay, that means from 4th you can go to 2nd node, you can go to 3rd node, you can go to 5th node. ये जो नोड नंबर है इनको आप 6, 7, 8, क्योंकि 5 तक हो चुके हैं तो इनको आप 6, 7, 8 लिख लो. ओके, नाउ अगेन यू नीड टू अप्लाई द सेम मेथड. हम क्या करेंगे, ये कंसिडर करेंगे 4 to 6 वाला. इसका हमने फाइंड आउट करना है कि मिनिमम कॉस्ट कितनी है. 4 to 7, 4 to आप 3 नोड जा रहे हो और 4 to आप 5 नोड जा रहे हो. ओके, तो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट. तो फर्स्ट आई विल टेक four to 2. That means suppose you are going from 4th node to 2 node. Okay, अब हमने मैट्रिक्स कौन सा कंसिडर करना है? ओके, अगेन यू कैन मेक ए मिस्टेक ओवर हियर कि आपने मैट्रिक्स लेने जो 4th नोड के साथ कनेक्टेड था. 4th नोड वाला, 1 वाला भी नहीं, जो यहाँ पर था स्टार्टिंग वाला वो नहीं लेना. 4th नोड वाला मैट्रिक्स. दैट मीन जब आप 1 to 4 आए थे, लाइक आई विल गो देयर, ये 1 से 2 का है, 1 to 4, ये है 1 to 4. ओके, तो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये था. ये देखो, ये लाइक आई एम कंसिडरिंग द पाथ 1 to 4. तो 4 के साथ जो कम्युलेटिव मैट्रिक्स जब आपने रिड्यूस कर दिया तो कौन सा था? दिस वन. सो दैट मीन्स यू नीड टू कंसिडर दिस मैट्रिक्स. ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम 4, ये देखो 4 to 2, तो आपने ये मैट्रिक्स कंसिडर करना है. Okay, now you are going from 4 to 2. आप 4 से 2 जाना है. हम क्या करेंगे? 4th रो, दिस इज योर 4th रो, 2nd कॉलम. ठीक है, 4th रो और 2nd कॉलम में हर एक एंट्री को इन्फिनिटी कर देंगे. ये इन्फिनिटी हो गई और ये इन्फिनिटी हो गई. और फिर हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रॉम 2 यू आर गोइंग बैक टू 1, नॉट 4, क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग नोड क्या थी? 1 है. तो हम a to 1 को क्या कर देंगे? इन्फिनिटी. फाइन. सो इफ यू आर टेकिंग दिस मैट्रिक्स, दिस वन, तो आपका 4th रो, दिस रो, 2 कॉलम, 2nd कॉलम इन्फिनिटी हो गया. और हमने किसको सेट कर देना है? a to 1 को इन्फिनिटी. तो a to 1 इज दिस वन, दिस एंट्री 12 वाली, तो उसको भी इन्फिनिटी कर दिया. तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा ये.
ओके इस पे हमने अब रो वाइज और कॉलम वाइज रिडक्शन अप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, तो टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएगी 28। ओके सिमिलरली आपने पाथ कौन सा कंसिडर करना है नेक्स्ट 4 to 3। जब आप 4 to 3 पाथ करोगे फिर से आपने क्या करना है, फोर्थ रो थर्ड कॉलम और A31 को इन्फिनिटी सेट करके उसकी रो वाइज कॉलम वाइज रिडक्शन अप्लाई करोगे, कॉस्ट फाइंड आउट की 50 आ जाएगी। फिर 4 से 5 की कॉस्ट 36। दैट मीन्स ये आप अगर आप 4 से 2 जाते हो तो उसकी कॉस्ट है 28, 4 से 3 की कॉस्ट है 50 और 4 से 5 नोड की कॉस्ट है 36। तीनों में से किसकी कम है सबसे, ये वाले 2 नोड। ओके 28 1। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल मेक ऑल दीज टू एज द डेड नोड और हम इस नोड को ले लेंगे सेकेंड नोड। ठीक है ओके यहां तक अगर कोई डाउट है तो यस। So next you have to apply the same method. Like here I'm assuming this is more 50 है, so this is your dead node, this is your dead node. That means हमने अब 1 से कहाँ चले गए, 1 से 4th नोड पे, 4th से आप कौन सी नोड पे जा रहे हो, 2 नोड पर। आप 2 से कौन कौन सी ऑप्शन बाकी हैं, 2 से आप 3 नोड पे जा सकते हो या फिर 5 पे। तो दैट थिंग वी नीड टू चेक, 2 से आप 3 और 5 पे, तो 3 और 5 वाली ऑप्शन ले लेनी है आपने। फाइन। अब आपने मैट्रिक्स कौन सा लेना है, मैट्रिक्स वो लेना है जो आपने 4 से 2 वाले पाथ पे आपने रिड्यूस करके बनाया है। Here it is written, some matrix obtained for the path 4-2 is considered as the reduced cost matrix। जो 4-2 path पे आपने reduce कर लिया था, वहां से वो मैट्रिक्स लेके आपने स्टार्ट करना है। So this was your matrix। So this was your that matrix। Okay। अब आपके पॉसिबल पाथ्स कौन से हैं, यू कैन गो फ्रॉम 2 to 3 और 2 to 5। सपोज आई वांट टू गो फ्रॉम 2 to 3, पहले पाथ कंसिडर कर लेते हैं 2 to 3। दैट मीन्स व्हाट वी विल डू, सेकंड रो, ये सेकंड रो, थर्ड कॉलम की हर एक जो एंट्री उसे इन्फिनिटी सेट कर देंगे। सो दिस इज इन्फिनिटी, थर्ड की भी इन्फिनिटी हो गई। एंड 3 to 1, क्योंकि 2 से 3 तक जा रही हो तो 3 से हमने कहा जाना है बैक 1 पे, क्योंकि हमने एक साइकिल क्रिएट करना है। सपोज अभी हम कह रहे हैं कि 1 से हम 4 जा रहे हैं, 4 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 और 3 से हमने बैक 1 पे आना है। ओके सो 3 to 1 एंट्री, 3 to 1 दैट वाज 0, प्रीवियसली वो 0 थी और वो क्या हो गई आपकी इन्फिनिटी। सो यू आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स नाउ। अब इसको हमने रो वाइज और कॉलम वाइज रिडक्शन अप्लाई करनी है। ठीक है तो यहाँ पर तो रिडक्शन होगी नहीं आपकी फर्स्ट 2 रो में और थर्ड ये 4th रो में, यहाँ 2 रिडक्शन है और यहाँ मिनिमम क्या है आपका 11। तो यू अप्लाई दैट रिडक्शन, आपकी रो वाइज रिडक्शन आप अप्लाई करो और फिर आप कॉलम वाइज रिडक्शन अप्लाई करो, तो ये टोटल आपकी आ जाएगी 13। तो कॉस्ट आ गई आपकी 52। ऐसे ही आपने पाथ कंसिडर कर लो 2 to 5 वाला, उसमें आप रिडक्शन अप्लाई करो, उसमें 0 आ रही है और उसकी कॉस्ट आ जाएगी 28। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 2 to 3 कॉस्ट है 52, 2 to 5 कॉस्ट कितनी है 28, दोनों में से मिनिमम कौन सी है 28 1। ओके तो दैट मीन्स आप कहाँ जा रही हो, 2 से आप 5 जा रही हो। इज इट क्लियर? ओके अब 5 के बाद पॉसिबल पाथ कौन से हैं, अगर आप सीधा ही लिख दो कि 5 के बाद 3 है पाथ, बट उसका मैट्रिक्स अगर आपने लेना है तो आपने इस पाथ पे जो मैट्रिक्स था उसे लेके उसे आपने रिड्यूस करना है। और ऑलमोस्ट सारी ही आपकी एंट्रीज इन्फिनिटी हो गई हैं, अभी लास्ट में ये देखो सारी ही एंट्रीज इन्फिनिटी है, तो कॉस्ट उसकी आ गई 28। तो ओवरऑल आपका ट्री जो है इट वुड बी लाइक दिस। ओके so what is the path that you are following now? From 1 you are going to 4, 4 से आप कहाँ जा रहे हो 2 नोड पे, 2 से 5
और 5 से 3 और 3 से ऑब्वियसली ये देखो 1 to 4, 4 to 2, 2 to 5, 5 to 3, 3 to back 1। तो जब आप इनकी टोटल कॉस्ट लिखोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 28। इसलिए लास्ट नोट जो है इसका कॉस्ट कितनी आ रही है, 28 आ रही है यहाँ पर, कि 1 से आपने स्टार्ट किया तो लास्ट नोट तक 28 है। फाइन। तो दैट मीन्स व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ योर साइकिल फॉर दिस प्रॉब्लम, जो टीएसपी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन है 28। दैट इज देयर using branch and bound। Fine। Obviously it is very lengthy। जब मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगी तो just go through this example। और कोई एग्जाम्पल करनी है तो आप नेट से कोई भी एग्जाम्पल डाउनलोड करके उस पर ट्राई कर सकते हो ये। Okay, only 1 minute is remaining। In next lecture I will go through the algorithm, और mainly algorithm के chances है कि that can be asked। Okay। और नेक्स्ट में लेक्चर में अगर आपका कोई और डाउट है या कुछ भी है तो यू कैन आस्क मी। फाइन, हम वो कर लेंगे।